Hello everyone. So today in this video I'll be discussing about the IT notes which I have shared with you, and it is for unit 1, that is database concepts for grade 12. Subject is information technology and subject code is 802. So let us start. First is, what do you mean by data? So anything which is stored either in your mobile phones, in the computer system, or in any storage device, that is the data. And data can be in the form of video, images, audio, or anything. Information. When we when the data is processed, organized, structured, or presented in a given context so as to make it useful is called information. So for these two terms, let us consider an example. For example, I have to search for database regarding videos on YouTube. So I'll be just typing my query and I will search for that. Okay. सो जैसे ही हम यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं उसके रिगार्डिंग हमें नंबर ऑफ़ वीडियोस शो होते हैं, तो दैट इज़ द डेटा एट दैट टाइम. बट उन वीडियोस में से जो वीडियो हमारे लिए यूज़फुल होती है, दैट बिकम्स द इंफॉर्मेशन फॉर अस. सो एनी डेटा, कोई भी डेटा जब हमारे लिए कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, एट दैट टाइम वो डेटा हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होता है. ओके. नाउ database, for example, I have to make a record of nursery to 12th standard students, so I'll be maintaining that record in Excel sheet. Okay, so that will become the database for me. Database एक ऐसा कलेक्शन होना इंटर रिलेटेड डेटा का जिसमें हम कभी भी कुछ भी रिट्रीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं. डेटाबेस लाइक मैंने नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड का एक्सेल शीट पे रिकॉर्ड डेवलप किया है, हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट किया है. ओके. सो इसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एक दूसरे से रिलेटेड होगी, मीन्स स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, पेरेंट्स नेम. सो ये इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट की इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके. सो जब मैं सारी इन्फॉर्मेशन नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर करती हूँ, एक एक्सेल शीट में स्टोर कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ, सो दैट विल बिकम डेटाबेस फॉर मी, बिकॉज उस इन्फॉर्मेशन को मैं कभी भी एक्सेस कर सकती हूँ, उसमें से कुछ भी डिलीट कर सकती हूँ और उसमें कुछ भी इंसर्ट यानी ऐड ऑन कर सकती हूँ. ठीक है. इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, व्यूज एंड रिपोर्ट एक्सेट्रा. So you all have seen the Excel sheet that is in the form of rows and columns, means in a tabular form. So अगर मैं Excel sheet पे कुछ database create कर रही हूँ, it is in the tabular form. Similarly, database can be in the form of reports, views, etc. Now there is one more example like school record. If I want to make a college record, if I want to मेक द कॉलेज रिकॉर्ड लाइक द एडमिन स्टाफ, स्टूडेंट, फैकल्टी, और उसको मैं एक जगह पे स्टोर करना चाहती हूँ कि जब भी मुझे इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो मैं उस डेटाबेस को ओपन करूँ एंड वहाँ से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करूँ. सो डेटाबेस में क्या होता है, कलेक्शन होता है डेटा का एंड हर इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड होती है. Now DBMS, what do you mean by DBMS? So DBMS stands for Database Management System. The full form of DBMS is Database Management System. So from the name it is clear that something which is managing the database, that is the DBMS. So DBMS is nothing but it is just a software. What is software? Software is the collection or the set of the programs, like you are using WhatsApp, Instagram, YouTube, all these are the applications or the softwares. Okay. So similarly the DBMS software we use for managing the database. Properties of database: it is designed, built and populated with data for specific purpose. Means अगर मैंने एक database बनाना है, I want to create database of a school. So why I want to create it? लाइक अगर मुझे किसी भी क्लास की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उस डेटाबेस में उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लूँ सो ईजिली विदाउट facing any difficulty. So that's why I have make a database of the school from nursery to 12th standard. Now it can be of any size and complexity. It depends upon the data. डेटाबेस आपका
स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है. इट कैन बी मेंटेन्ड मैनुअली और कैन बी कंप्यूटराइज्ड. अगर आपका लार्ज डेटा है तो आप उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में क्रिएट करोगे, और अगर डेटा स्मॉल है, डेटा इज स्मॉल, सो you can also create it manually like in registers, notebooks, etc. Now need for database instead of file system. that हमें database की ज़रूरत क्यों पड़ती है. So first point is data redundancy. Data redundancy, redundancy means duplicacy. So file system, in computer system अगर आप फाइल सिस्टम मीन्स फाइल सिस्टम यूज़ करते हो, अगर आप डिफरेंट फोल्डर्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, आप एक इंफॉर्मेशन को 2 फोल्डर्स में कलेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या क्रिएट करती है, डुप्लीकेसी. सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट इज़ डेटा इनकन्सिस्टेंसी. इनकन्सिस्टेंसी मीन्स अगर मैंने सेम ही डेटा को 2 फोल्डर्स में क्रिएट किया है फाइल सिस्टम में, और एक फ़ोल्डर में जो डेटा उसको मैंने अपडेट कर दिया एंड दूसरे फोल्डर में मैंने उसको अपडेट नहीं किया, तो दैट विल बी डेटा इनकन्सिस्टेंसी. मीन्स मेरा जो डेटा है वो एक्यूरेट अपडेटेड नहीं है. सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने डेटाबेस को क्रिएट करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट इज़ डेटा इंटीग्रेशन. Data integration. So as data files are independent, accessing information from multiple files become difficult. अगर मैंने एक सिमिलर डेटास का 2-3 फोल्डर्स बना दिए हैं, तो उसमें से अगर मैं डेटा एक्सेस करना चाहूँगी तो मुझे तीनों फोल्डर को ही एक्सेस करना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग होगा. सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने डेटाबेस को क्रिएट किया. मीन्स बेसिकली डेटाबेस क्या होता है कि एक डेटाबेस मीन्स पूरी इन्फॉर्मेशन को हम एक ही जगह पर स्टोर करें, ताकि हमें अलग अलग जगह पर उसको सर्च ना करना पड़े. सो इसलिए फाइल सिस्टम से हम डेटाबेस क्रिएट करना हमने स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट इज़ यू कैन सी दिस डायग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, DBMS एंड डेटाबेस. सो द रिलेशन इज़, व्हाट इज़ द रिलेशन, दैट DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर. इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, इट इज़ एन सॉफ्टवेयर विच वी यूज़ टू मैनेज द डेटाबेस. मीन्स DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम टेबल क्रिएट करके, टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करके डेटाबेस को क्रिएट करते हैं. ओके, DBMS is a software which provides an interface to perform various operations like database creation, storing data, updating data, creating a table in the database and many more. Okay, now DBMS allow user to perform following task. सो विद द हेल्प ऑफ DBMS, अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके, DBMS को यूज़ करके, तो आपको क्या उसकी यूज़फुल होता है DBMS. ओके, सो फर्स्ट इज़ डेटा डेफिनेशन. इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस. ओके, सो अगर मैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रही हूँ तो मैं उसका डेटा टाइप प्रोवाइड करूँगी, लाइक इट इज़ एन इंटीजर, इट इज़ एन कैरेक्टर, ओके, it is in float value. So it defines the data, that which type of data I am going to enter in the database. Then there is data updation. So it allows the user to update the data in the database, such as insertion, modification and deletion of actual data in database. So database में मेरी सारी information एक particular database में collect होगी, और उस डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसको मॉडिफाई कर सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ. सो ये फीचर्स DBMS हमें प्रोवाइड करता है. देन डेटा रिट्रीवल मीन्स अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से चाहिए तो मैं उसको रिट्रीव कर सकती हूँ डेटाबेस को एक्सेस करके. प्रोटेक्टिंग द डेटा, डेटाबेस DBMS ऑल्सो प्रोवाइड अस द password feature, that it protects the data with the help of password. Sharing the data, it is used to share the data to the multi users. means अगर आप डेटाबेस किसी से शेयर करना चाहते हो तो आप उसको पासवर्ड प्रोवाइड करके उस डेटाबेस को मोर देन 1 यूज़र यूज़ कर सकते हैं. सो